Okay, yesterday we were talking about the PERT analysis. Let me just revise this part once again. For any such given problem, which is a project actually, for this problem, we have developed or we have determined the different things to draw the network diagram, right? Then we determine the critical path by identifying the critical activities, and with the help of that we completed the question to find out the project completion time as well. Similarly, I explained you the total floats and free floats for the non-critical activities. So this part we covered yesterday, which comes under the critical path method. And now PERT we are going to determine, which is the project evaluation and analysis. So for that we do need these three concepts: optimistic time, which we are going to denote by T naught, right? Then pessimistic time, which we are going to denote with TP, and most likely time, which we are going to denote with TM. Here we should have M, right? So these three concepts we will be needing. And what are these three concepts? This is the shortest. Optimistic time is shortest possible time in which an activity can be performed assuming that everything goes well. Pessimistic time, the longest possible time required to perform an activity under the extremely bad conditions. And third, most likely time, the time that would occur most often to complete an activity if the activity was repeated under the exactly same conditions many times. Okay, for example, I have given you the project of daily timetable which we are running. So optimistic time means what? Suppose I am having two lectures, one is running from 10 to 11 and another is running from 11:10 to 12:10. 1 hour lectures we are having, and this is the short break of 10 minutes everyone should consume, right? But suppose I am lagging in syllabus and I wish to utilize the 10 minutes for completion of any particular bit. In that case, either this lecture can be preponed and can start from 11 o'clock, or this lecture can be extended to further 10 minutes. So this is nothing but the free float and total float of that particular activity. Activity is about taking the lecture, and project is what? Completing the entire daily consumption of times of 8 hours for the particular course or for a particular branch. So 9 to 5 तक हमारा जितना टाइम है उसमें ही हमें ये वेरिएशंस करने हैं. सो ऑप्टिमिस्टिक टाइम मीन्स वी आर यूजिंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम to complete that activity, assuming that everything goes well. means 9 to 5 वाला शेड्यूल हैम्पर नहीं होना चाहिए. इसका केयर करके हम ये 10 मिनट यूटिलाइज कर सकते हैं, और लंच ब्रेक वी कैन यूटिलाइज. सेकेंडली द पेसिमिस्टिक टाइम. नाउ अगर आपकी एग्ज़ाम सडन अनाउंस हुई है यूनिवर्सिटी की तरफ से या हमारे एग्जाम सेल की तरफ से, इन दैट केस टू कंप्लीट द सिलेबस बियॉन्ड 9 to 5 टाइमिंग, सपोज वी आर एक्सटेंडिंग टाइम फर्दर टिल 8 PM और 10 PM. So that is the extremely bad condition with which we have to run our timetable. So that is our pessimistic time, and most likely time is our routine 9 to 5 syllabus, where that short break, proper lunch break you are going to get. So this is most likely to be to happen in the campus. With that you can understand this particular both of the time variations over here. Three estimates we always try to get in that case: optimistic time, most likely time, and pessimistic time. So this short suffixes will give you exactly what type of estimation of time we are dealing with. TO stands for the optimistic time, then TM stands for the most likely time, and TP stands for the pessimistic time. So the expected time for that activity can be denoted by this particular relation, and it is denoted by TE, estimated time, and given by T naught plus 4 times Tm plus Tp divided by 6. So it's almost like a average or mean of all these three times.
Then come to the next part, that variance of activity time. So this is sigma I square is equal to 1 by 6 into Tp minus T naught bracket square. So with this knowledge, now we'll turn out, or now we'll solve this particular problem, in which we are drawing the net diagram, we are finding out the expected completion time, that means TE we have to find out, variance means sigma I square we are going to find out, and critical path and project completion time, that also we are going to find out over here. So we are going to answer these 3 questions for this problem. So let me first of all take a journal page. Yes. And let me start with this problem first of all. Now what I have given, I'll just write down that here. This is the, I'll just read out the problem once again. A small project involves 7 activities, correct? And their time estimates are listed in the following table. Activities are identified by their beginning I and ending J. This kind of activity yesterday I explained you how to write down. Suppose this is your A activity, this is B activity, this is C activity, and so on. And ending at jth node numbers. So let me enlist all these things first of all in a tabular format over here. So this is activity, then this is estimated duration, or let me just write down, this is estimated duration here. So I'm going to put down here T naught, this is Tm, and this is Tp. So let us enlist first of all. This is 1-2, 1-3, then 1-4, correct? So 2-5, 3-5, 2-5, 3-5, then this is 4-6 and 5-6. So these many activities we are having. The corresponding values also will note down. This is 117, 147, 147, okay? Then 228, 111, sorry, this is 228 for 124, and this is 111. 111. Then we are having the values 2 to 15, 3, 5, 15, sorry, it's 3, 5, 14, not 15, yes. Then this is 2, 5, 8, and over here this is 3, 6 and 15, okay. So first you have to find out with this chart 2 things. Number 1 TE and number 2 sigma I square. So इन दोनों के फॉर्मूलेज मैं यहाँ पर लिखती हूँ. This is equal to T naught plus 4 times Tm plus Tp divided by 6, and this is equal to Tp minus To. I hope the formula is similar. This is Tp minus To, right? Divided by 6 bracket square. So that's your sigma square. Alright, and now we are going to solve these problems over here. Now first value. So first value के लिए for second, third, fourth, fifth, sixth and seventh. So we will calculate all that values here. So for first 1 to 2 activity, so we are going to calculate the TE, estimated time, that is average of all these 3, is equal to 1 plus 4 plus 7, 4 multiplied by Tm, so that is going to be 12, right? 12 divided by 6, so we are going to get the value as 2 over here. So TE we are going to get as 2. Then come to next. This is 1 plus 4 multiplied by 4, 16 plus 7, so that will be 24. So this is 6 4s are 24. यहाँ पर हमें मिलेगा 4. Then 1 plus 4 plus 1, 6. 6 divided by, I'm sorry, this one is remaining.
2 plus 4 divided 4 multiplied by 2, 8. So it's 10 plus 18. 6 3s are 18. Then for next set of values, for 2 to 5, this is 1 plus 4 plus 1. 6 divided by 6 is 1 here. Then coming to next value, this is, I have doubt over here, just a minute. This is 2 5 14. I'm sorry, यहाँ पर 2 है. This is 2 5 14. So 2 multiplied by 4 into 5, that is 20. 22 plus 14. 22 plus 14, it's 36. 36 divided by 6, 6 6 are 36, so it's 6 here. 6 here. Then 2 plus 4 times 22 once again plus 8, so I'm going to get 30 here. So this is divided by 6, that is 6 5s are 30, so यहाँ पर हमें मिलेगा 5. And here 4 multiplied by 6, 24. 24 plus 3, 27. 27 plus 15, 42 divided by 6, so 7 over here. So this is your estimated time for this given chart. And now we are going to calculate sigma square over here. So sigma square find out करने के लिए हमें क्या चाहिए, TP minus T naught, ये difference चाहिए. So TP minus T naught, this is 6 divided by 6 means 1, 1 का square 1, तो ये value आ जाएगी 1. Similarly here also 7 minus 1, 6 divided by 6 is 1, 1 का square 1. 8 minus 2, 6, 6 divided by 6, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा. Then 1 minus 1, 0, 0 divided by 6, 0, 0 का square 0. 14 divided by 14 minus 2, 12, 12 divided by 6, 6 2s are 12, तो यहाँ पर आएगा 2, 2 का square 4 आएगा यहाँ पर, not 2. Then for this 8 minus 2, 6 divided by 6 is 1, 1 का square 1. 15 minus 3, so it remains 12, 12 divided by 6, 2, 2 का square 4. So ये हो गया आपका variance. So many times in problem this will be asked to find out, and once you determine that these values, TE values, must be used to draw network diagram. So the variation is this much only. So now let us find out the network diagram over here for this problem. So I'll just write down that values once again. A node for 1 to 2, B node for 1 to 3, C node for 1 to 4 we have given, D node 2 to 5, 3 to 5, 2 to 5, then E node, this is 2 to 5, then F node, I guess ये 4 to 6 and 5 to 6 है, yes, so this is 4 to 6 and this is 5 to 6. So इसके corresponding हमें जो values मिली है ना ऊपर calculate होके, I'll just write down that this is 2 4 3 1 6 5 7, 2 4 3 1 6 5 7. So ये आपका time है, हमारे, and ये आपकी activity है. अब इस एक्टिविटी एंड टाइम से रिलेटेड हम यहाँ पर नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं. सो लेट अस ड्रॉ दैट. सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन द सर्कल ओवर हियर. ठीक है, एंड नाउ दिस इज़ योर 1 फॉर सपोज. ठीक है, तो 1 से जा रहा है 2 पर, देन 1 से जा रहा है 3 पर, एंड 1 से जा रहा है 4 पर. सो 3 लाइन्स वी विल बी हैविंग. So I'll just try to draw the circles once again over here. यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक. ठीक है, and let us now write down here this is 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. I hope this part is clear. So ये activity है आपके पास A, this is B and this is C. Okay, so activities are directed towards this part. Then what next activity I am having, 2 to 5. So I'll just take that activity 2 to 5. So let me just draw one line here, right, and then corresponding circle here. So ये है हमारा 2 to 5. उसके बाद हमारे पास है 2 to 5. I'm sorry, एक ही मिनट, it is 3 to 5. I'm sorry, यहाँ पर 3 to 5 है. ठीक है, so let us draw the
स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 3 to 5, सो ये यहाँ पर आ जाएगा. दिस इज़ 5 वी हैव कंसिडर्ड आई गेस, राइट. सो लेट मी जस्ट राइट डाउन हियर, ये है 5 आपका, am I right? देन 4 to 6 एंड 5 to भी 6 जा रहा है. सो अगर मैं यहाँ पर कहीं पर हमारा 6 निकाल देती हूँ, राइट, तो हमारा 6 यहाँ पर ऐसे जाएगा. दिस इज़ 4 to 6 एंड 5 to 6, ठीक है. सो ये हो गया हमारा 6 एंड द इवेंट्स फॉर ऑल ऑफ दीज नोड्स, कनेक्शन ऑफ नोड्स विल जस्ट नोट डाउन. ABC हमने लिख दिया. 2 to 5 के लिए क्या जा रहा है, ये जा रहा है D. E जा रहा है 3 to 5 के लिए, ये है E. 4 to 6 जा रहा है F एंड 5 to 6 जा रहा है G. सो ये है हमारी नेटवर्क डायग्राम. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट. शैल आई मूव फर्दर? एंड नाउ लेट मी ड्रॉ हियर द बॉक्सेस वेयर I am going to put down my LC and ES, starting time and latest completion time, early start time and latest completion time. So everywhere I am putting the box where I am going to divide this box into 2 halves where LC and ES we can mention. So first of all let us write down the LC. So this is the denominator line. So the LC नहीं, sorry, ES हम मेंशन करते हैं. सो एज इट इज़ इनिशियल नोड इट्स 0 to 2 के लिए जब हमारी एक्टिविटी रन हो रही है तो 0 to 2 के लिए एक ही वैल्यू हमारे पास 2 है. सो आई राइट डाउन हियर 2, करेक्ट. देन कम टू द बी पार्ट. 1 to 3 के लिए हमारी वैल्यू है बी की. ड्यूरेशन जो रिक्वायर्ड है वो है 4, ऑलराइट. तो यहाँ पर हमारे पास नीचे 4 आएगा, करेक्ट. देन कम टू C to D. सो 1 to 4 के लिए C एक्टिविटी आ रही है जिसका वेटेज है यहाँ पर ड्यूरेशन इन टर्म, वेटेज इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन और टाइम इट्स 3. सो 0 से लेके 3 तक आ रहा है ये. सो 3 days और 3 months और 3 hours जो भी आपको दिया है उस अकॉर्डिंग ये टाइम मैनिपुलेट होगा. देन D एक्टिविटी के लिए ये ड्यूरेशन है 1, E के लिए है ये है 6, G के लिए है ये है 7 एंड F के लिए ये है 6. सो विल जस्ट राइट डाउन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन विल गो फर्दर. आई एम सॉरी, आई एम मेकिंग मिस्टेक ओवर हियर. दिस इज F के लिए 6 नहीं है, F के लिए ये है 5, E के लिए 6 है एंड G के लिए 7 है. एम आई राइट? यस. ओके. सो नाउ वी आर हैविंग 2 हियर. अर्ली स्टार्ट टाइम फॉर D and we are ending at this point, but early start point for G means addition of these 2. लेकिन addition of these 2 लेने के पहले 5th वाले नोड पर या 5th वाले इवेंट पर 2 अलग अलग एक्टिविटीज़ रन हो रही है. तो मुझे पहले इसके लिए भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. B पर B एक्टिविटी के साथ हमारे यहाँ पर 4 टाइम आ रहा है, बट दिस पर्टिकुलर 4 टाइम आई कैन ऐड 2 हियर. सो यहाँ पर 4 + 6 10 हो रहा है और यहाँ पर 2 + 1 3 हो रहा है. सो मैक्सिमम एलोकेशन मुझे यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर एलोकेशन आ जाएगा 10. वी आर फाइंडिंग आउट द अर्ली स्टार्ट पॉइंट और टाइम फॉर द विद द फॉरवर्ड पास. कम टू दिस पॉइंट. अब ये 1 to 4 C एक्टिविटी के थ्रू आ रहा है, सो टाइम रिक्वायर्ड इज 3. अब 6th वाले नोड पर जहाँ पर G एक्टिविटी भी आ रही है एंड F एक्टिविटी भी आ रही है. सो हमें यहाँ पर टोटल टाइम वही लिखना है जो मैक्सिमम ड्यूरेशन कवर कराएगा. सो दिस इज 3 + 5 6 अपीयरिंग ओवर हियर, सॉरी 3 + 5 8 अपीयरिंग ओवर हियर एंड यहाँ पर आ जाएगा 10 + 7 17. सो ये मैक्सिमम ऑफ 2, मुझे यहाँ पर 17 लिखना पड़ेगा. एंड नाउ लेट अस राइट डाउन द बैकवर्ड पास. सो एंड पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं, तो ये है आपका LC. सो LC हम लिख रहे हैं रेड कलर के साथ. सो दिस इज 17 से यहाँ पर मुझे आना है 4 तक, हमारा राइट, एंड यहाँ से यहाँ तक जाना है. सो दिस इज 17 - 5 यहाँ पे आ जाएगा 12 एंड 17 - 7 यहाँ पे आ जाएगा 10, हमारा राइट. देन 10 से ये 3 तक आ रहा है, मीन्स 5th वाले नोड से 3 तक आ रहा है, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है ये टाइम. 10 - 6 यहाँ पर आ जाएगा 4, करेक्ट.
एंड यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस 1, यहाँ पे 9, ठीक है। देन अब ये 4, 3 एंड 2 ये तीनों भी LC कैलकुलेट हो चुके हैं। अब मुझे 1 पर आना है, एंड 1 पर आते हुए हम 3 अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू 1 पर आ रहे हैं। सो इट्स अ बैकवर्ड पास। बैकवर्ड पास लेते वक्त मुझे सबसे लीस्ट टाइम चूज़ करना है। सो 9 माइनस 2 7, 4 माइनस 4 0 एंड 12 माइनस 3 ये भी 9 होगा। सो 7 0 एंड 9, तो मुझे लीस्ट चूज़ करना है जो कि होगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, करेक्ट। अब यहाँ पर मुझे चेक करना है कि क्रिटिकल पाथ कौन सा है। सो लेट अस चेक आउट दैट क्रिटिकल पाथ। कैसे चेक करते हैं? सो आई विल जस्ट राइट डाउन टू डिटरमिन क्रिटिकल पाथ। फर्स्ट कंसीडर ESI इज इक्वल टू LCI, ये दोनों सेम होने चाहिए। सेकंड ESJ इज इक्वल टू LCJ। तो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में या इवेंट्स के बीच में ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। थर्ड LCJ माइनस LCI इज इक्वल टू ESJ माइनस ESI इज इक्वल टू DIJ, करेक्ट। सो ये कंडीशन कहाँ कहाँ पर सेटिस्फाई होती है, लेट अस चेक आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 to 2 यहाँ पर ये 0 है, ये 0 है, यहाँ पर नहीं है। सो ये हमारी A हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी। B पर 0 0 मीन्स LCES यहाँ पर सेम है, LCES यहाँ पर भी सेम है, तो ये हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी होगी। आई जस्ट राइट टिक हियर, ठीक है। देन 1 to 4 के बीच में यहाँ पर 0 0 है, यहाँ पर 12 and 3 है, तो ये हमारी एक्टिविटी नहीं होगी, करेक्ट। सो आई जस्ट क्रॉस दैट हियर। देन 4 to 6 के बीच में यहाँ पर 12/3 है, यहाँ पर 17/17 है, तो ये भी नहीं है। दोनों तरफ हमें सेम चाहिए, नहीं है। 3 to ये इसे मैं क्रॉस करती हूँ। 3 to 5 के बीच में यहाँ पर 4 4 है, यहाँ पर भी 10 10 है, तो क्रिटिकल एक्टिविटी है, करेक्ट। तो मैं इसे टिक करती हूँ। देन यहाँ पर 9 2, यहाँ पर 10 10 सिमिलर नहीं है, सो दिस इज़ नॉट द क्रिटिकल एक्टिविटी। एंड G को यहाँ पर 10 10 है, यहाँ पर 17 17 है, तो दिस इज़ द क्रिटिकल एक्टिविटी। अब ये क्रिटिकल पाथ में आती है क्या एक्टिविटीज़, वो चेक करते हैं। तो वो चेक करने के लिए क्या चाहिए? वेदर आई नोटेड द कंडीशन प्रॉपरली, कैन एनीबडी रिमेंबर दैट कंडीशन? चेक दिस आउट। यहाँ पर आई जस्ट गेट अनदर पेन। यहाँ पर क्या है हमारे पास? 4 है, सो दिस इज योर LC, राइट। दिस LC माइनस दिस LC, व्हाट इज द वैल्यू? इट्स 4। ES माइनस दिस ES, व्हाट इज द वैल्यू? 4, एंड दिस 4 मस्ट बी इक्वल टू द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट एक्टिविटी 4। सो ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। सो आई कैन टिक अ सेकंड टाइम इट्स इंक्लूडेड इन द क्रिटिकल पाथ। 3 to 5 के बीच में ये हमारा क्रिटिकल एक्टिविटी है, ये क्रिटिकल पाथ में आती है क्या, चेक करते हैं। 10 माइनस 4 6, दिस 10 ग्रीन वाला 10 माइनस ग्रीन वाला 4 6 आ रहा है, राइट। एंड ये 6 हमारा रिक्वायर्ड टाइम भी यहाँ पर मेंशन्ड है, सो ये भी क्रिटिकल पाथ में आता है। देन कम टू G, ये क्रिटिकल एक्टिविटी है बट पाथ में आती है क्या? 17 माइनस 10 7, this 17 minus 10 7, so 7 is the time required to complete that activity, तो ये भी हमारे critical path में आ रहा है, right? So after checking out this particular fact, now we can put down the critical path in this way. I'll just erase this. ये हमारा critical path है, right? ये included है, ये included है, so I'll draw the critical path in this way. यहाँ से यहाँ तक, right? Then यहाँ से यहाँ तक, एंड यहाँ से यहाँ तक। सो लेट अस चेक आउट कि क्रिटिकल पाथ हमें प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना देता है। सो जस्ट राइट डाउन द प्रोजेक्ट। देयरफॉर क्रिटिकल पाथ इज 1 2 3, 1 to 3 जा रहा है ना ये, राइट। 3 to 5 एंड 5 to 6,
सो इसके बीच की एक्टिविटी है B, देन यहाँ पर आएगी D, कौन सी एक्टिविटी E, ये आएगी E एक्टिविटी एंड दिस इज G, करेक्ट। एंड देयरफॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज इक्वल टू बी एक्टिविटी के लिए लगने वाला टाइम दिस इज 4, करेक्ट। ई एक्टिविटी के लिए लगने वाला टाइम आई गेस ये भी 4 है, लेट अस चेक आउट, 6 है, सॉरी 6 है। एंड इस एक्टिविटी के लिए लगने वाला टाइम 7 है। सो 7 + 6 13 + 4 17 डेज, अच्छा डेज के फॉर्म में दिया है। सो 17 डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। Got this point everyone? So ये था हमारा PERT and CPM. Any doubts anyone over here? We are having couple of more problems which you can go for. इसके आंसर्स मैं आपको सेंड करके रखती हूँ, बट यू कैन गो फॉर these problems to understand in a better way. So हमारा ये पूरा प्रेजेंटेशन आपको अपलोड कर दिया है गूगल क्लासरूम पर, and you can deal that very effectively. So project evaluation and review techniques and critical path method, this particular portion we are completing over here. Yes beta. Ma'am, can you revise this problem because due to network issue I got disconnected. Okay, anyhow I'm recording it, so you will get the full solution with explanation as well. Ma'am, just preview, not a complete example, just preview, explain. Okay, I'll explain. So first of all, let me just take another color over here. Yes. First of all, with the given estimated time T0, TM and TP, we are evaluating TE. This is called as the estimated or mean of all of these three values. सो हर एक एक्टिविटी जो है वो नोड्स के बीच में डिफाइंड है, तो आई कैन असाइन दैट एक्टिविटीज एज A, B, C, D, E, F एंड G, एंड इन तीनों की हमने एवरेज निकाली विच इज़ TE, एंड वी हैव बीन आल्सो आस्क्ड टू फाइंड आउट इट्स वैरिएंस, सो सिग्मा I स्क्वायर भी हमने फाइंड आउट किया। सो ये टेबल हमने फर्स्ट प्रिपेयर कर ली, एंड आफ्टरवर्ड्स ये जो एस्टिमेटेड टाइम आपने निकाला है, T की वैल्यूज़ जो निकाली है वो हमें यूज़ करनी है नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, network diagram draw करने के लिए, and with that we are drawing the network diagram. So once again I shortlisted and noted that time which is expected time, not estimated, expected time called as the mean of the all times. So A के लिए 2, B एक्टिविटी के लिए 4, C के लिए 3, D के लिए 1, E के लिए 6, F के लिए 5 and G के लिए 7, ये टाइम हमें कैलकुलेट करने के बाद मिला है। Now as per the given activities we have completed this particular network diagram. So 1 से एक्टिविटी कहाँ पर जा रही है, 2 पर, 3 पर एंड 4 पर। So 1 से बर्स्ट हो रहा है इवेंट टू डिफरेंट 3 इवेंट्स 2, 3 एंड 4। सो यहाँ पर ये लाइन्स जा रही है, फर्स्ट एक्टिविटी इज A, सेकंड इज B, थर्ड इज C। इसका टाइम ड्यूरेशन हमने ब्रैकेट में लिख के रखा है 2, 4 एंड 3, ये टाइम ड्यूरेशन हमने ब्रैकेट में लिख के रखा है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी D, इसका 1 है, E का 6 है एंड F का 5 है। D एक्टिविटी है 2 to 5 के बीच में, E है 3 to 5 के बीच में, F है 4 to 6 के बीच में एंड G है 5 to 6 के बीच में। एंड हर एक एक्टिविटी के लिए लाइक A के लिए ब्रैकेट में उसका टाइम रिक्वायर्ड है 2 days, B के लिए 4 days, C के लिए 3 days एंड सो ऑन। वंस वी कंप्लीट दिस network diagram later, so I'll just number I'll number over here. First, network diagram. Second, evaluation of these boxes, correct? Third, identifying the critical activity, and fourth, noting down the critical path. So ये 4 चीज़ें हमने इस फिगर के साथ की है. So it's a critical path is also required, right? So 0 के लिए as it is the starting point, 1 के लिए as it is the starting point, हमारा जो estimate अर्ली स्टार्ट टाइम होगा किसी भी एक्टिविटी A, B या C के लिए, मीन्स 0th टाइम पर हम ये तीनों की तीनों एक्टिविटीज़ इनिशिएट कर रहे हैं. नाउ एज
A activity will require 2 days, B 4 days and 3 days. The completion time will be different. Completion time will be different. I hope you understand this point. Then for next activity we'll start calculating the early start time. So activity A खत्म हो रही है इस नोड पर, उसके साथ स्टार्ट हो रही है D एक्टिविटी. सो D एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट टाइम हमारे लिए होगा 2. A एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट टाइम क्या था 0, D का है 2. तो ये 2 + 1 यहाँ पर 3 आना चाहिए 5th वाले नोड पर. एंड यहाँ से आके E पर E के लिए रिक्वायर्ड है 6 डेज. तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ E इवेंट इज 4 जो B से आ रहा है, एंड 4 + this 6 gives you 10. सो यहाँ पर मुझे मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन चूज़ करना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 4 + 6 10 डेज करती हूँ तो D एक्टिविटी भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी टाइम ड्यूरेशन वाइज, क्योंकि ये एक्टिविटी पैरेलली चल रही है ना. ये एक्टिविटी जब तक कंप्लीट हो जाती है 10 डेज में, तब तक D एक्टिविटी तो श्योरली कंप्लीट हो ही जाएगी. देन वी कैलकुलेटेड द वैल्यूज early start time of G event. It's 10, considering these two different events coming at the same node and considering the maximum of that. Then C activity के लिए early start time है 0, वो आ रही है 3 days के साथ यहाँ पर. तो F activity के लिए starting time है 0 + 3 3, एंड F एक्टिविटी यहाँ पर ख़त्म हो रही है. सो अगर मुझे 6 के बाद अगर कोई एक्टिविटी यहाँ पर स्टार्ट करनी है तो उसके लिए अर्ली स्टार्ट टाइम होगा 17, लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो रहा है. सो नॉट नीडेड टू गेट फर्दर अहेड, तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देते. तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है. एंड नाउ विल फोकस ऑन द LC. LC के लिए हमें बैकवर्ड पास यूज़ करना है. तो यहाँ पर 17 है, यहाँ से 2 अलग अलग इवेंट्स जा रहे हैं बैक टू आवर पोजिशन. तो उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है 17 - 5 12 यहाँ पर आ जाएगा, एंड 17 - 7 यहाँ पर 10 आ जाएगा. 10 से भी 2 अलग अलग इवेंट जा रहे हैं, राइट. सो 10 - 4 -6 इट्स 4 हियर, 10 - 1 9 इज हियर. अब 2 and 3 नोड से 1 पर इवेंट मर्ज हो रहा है. सो 2 अलग अलग जगह से यहाँ पर इवेंट्स मर्ज हो रहे हैं. सो आई हैव टू नोट डाउन द लेस टाइम, एंड ऑल्सो यहाँ से 4 से भी 1 पर आ रहा है. सो तीनों इवेंट से 1 पर मर्ज हो रहा है इवेंट बैकवर्ड प्रोसेस के साथ या बैकवर्ड पास के साथ. तो मुझे यहाँ पर लीस्ट टाइम चूज़ करना है. सो 9 - 2 7, 4 - 4 0, एंड 12 - 3 9. सो 7 0 and 9 में से मिनिमम इट्स 0. सो आई नोटेड हियर 0 एज द LC. अब मुझे ये कंडीशन चेक करनी है क्रिटिकल एक्टिविटी की एंड क्रिटिकल पाथ की. तो पहले हमने क्रिटिकल एक्टिविटी चूज़ की, जहाँ जहाँ पर अर्ली स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम सेम है, वो 2 कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच की एक्टिविटी हमने क्रिटिकल एक्टिविटी असाइन की. सो यहाँ पर क्रिटिकल एक्टिविटी असाइन की हमने B फर्स्ट, देन E सेकंड टाइम एंड G थर्ड टाइम. रेस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ आर नॉट क्रिटिकल एक्टिविटीज़. अब क्रिटिकल पाथ के लिए चूज़ करते हैं. तो यहाँ पर दिस 4 माइनस दिस 0, 4 है, ये 4 नीचे वाला माइनस अर्ली स्टार्ट टाइम का 0, ये भी 4 है, एंड दिस 4 इज इक्वल टू द टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट एक्टिविटी. तो ये हमारे क्रिटिकल पाथ में आएगी. ऐसे ही हमने E के लिए भी किया एंड G के लिए भी किया. सो ये तीनों भी एक्टिविटीज़ हमारे क्रिटिकल पाथ में है. तो हम क्रिटिकल पाथ लिख रहे हैं 1 to 3 which comprises the B activity, 3 to 5 which comprises E activity, and 5 to 6 which comprises G activity. So critical path is B to E to G, and project completion time is required time for all these 3 activities calculated together. So 4 + 6 + 7, 17 days required to complete this project. Got it? Yes, ma'am. Okay. So likewise you can solve all the problems of PERT and CPM, and we have to explain both of these concepts together. We cannot separate it out. Further, these particular calculations can be used to check out the probability of completion time as well, but that part we are not considering over here. Okay, so here I conclude this project management part, including the PERT analysis and CPM. And now we will be starting with the next part of our syllabus, which is called as the dynamic programming or non-linear programming. Non-linear programming.
Okay. Before I start this, let me explain you a couple of points. I'll just abbreviate that here. This is NLPP we are going to start. हमने LPP पहले पढ़ा है, राइट? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर पुट डाउन करने जा रही हूँ. दिस इज ऑप्टिमाइज Z इज इक्वल टू समेशन ऑफ Cj माइनस Xj. J इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 to n. तो ये कोई एक्सप्रेशन होता था जिसकी वैल्यू आपको ऑप्टिमाइज करनी है. एंड यहाँ पर Xj जो है इसका पावर जो होता था 1 होता था, इसलिए ये लीनियर ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है या ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऐसा हम बोलते थे. सो दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट? नेक्स्टली इसके साथ आपको कंस्टेंट्स दिए थे सच दैट समेशन ऑफ AI, Xj either less than or equal to or greater than or equal to or equal to b. करेक्ट? और यहाँ पर मैं Ij लिखती हूँ सो दैट इट विल बेटर टू अंडरस्टैंड. तो ये पूरी सिस्टम होती थी हमारी. दीज आर द कंस्ट्रेंट्स एंड ऑल Xj's आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये हमारी नॉन निगेटिविटी कंडीशन थी. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देन कंस्ट्रेंट्स में एंड जहाँ पर नॉन निगेटिविटी कंडीशन दी है वहाँ पर हमें सारे के सारे Xj जो है वो लीनियर दिए थे. एंड हेंस द प्रॉब्लम इज टर्म्ड एज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. वाई प्रोग्रामिंग? क्योंकि हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हमारे ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं, इसलिए प्रोग्रामिंग. सो हम प्रोग्रामिंग के साथ वही करते, वी ऑलवेज ट्राई टू ऑप्टिमाइज द आंसर. सो ये था हमारा स्टडीड पार्ट, जहाँ पर हमने कौन सी मेथड पढ़ी है? ग्राफिकल मेथड पढ़ी है, सिंप्लेक्स मेथड पढ़ी है, उसके साथ और वेरिएंट्स भी पढ़े हैं, डीजनरेसी पढ़ी है, बिगेम मेथड पढ़ी है, इनफिजिबल सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन के साथ भी हमने डील किया है. कमिंग टू लैटर ऑन हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी देखा है जो लीनियर था, एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम भी देखा है वो भी लीनियर था. तो हमने हर टाइप के प्रॉब्लम के साथ डील किया है जो लीनियर थे, हैविंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव और प्रॉपर्टीज़ भी में से. अब हमें डील करना है बी पार्ट के साथ जो है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ऑब्वियसली जो प्रॉब्लम ऊपर वाले लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के कैटेगरी में नहीं आते उसे हम नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं. तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना वो इस वे में हम पुटअप करते हैं. सो दिस इज ऑप्टिमाइज Z इज इक्वल टू सर्टन समेशन ऑफ फंक्शन xi. I is varying from 1 to n and subject to certain conditions we may have given. This is the summation of say f of xi or aij into xi function of xi, ऐसा मैं बोल देती हूँ. इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू b. मैं लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ऐसे ही लिखती हूँ b. ठीक है? एंड अगेन कंडीशन नॉन निगेटिविटी कंडीशन में भी गिवन xi's आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो ये इसका जनरलाइज फॉर्म है. मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर एग्जांपल देती हूँ. ऑप्टिमाइज z इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर. करेक्ट? सब्जेक्टेड टू x1 प्लस x2 is less than or equal to 10 and xi's greater than or equal to 0. तो x1 एंड x2 की वैल्यूज़ हमें लेस दैन 10 चाहिए, लेस दैन और इक्वल टू 10 चाहिए, बट साइमल्टेनियसली x1 एंड x2 की वैल्यूज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 चाहिए. तो नॉन निगेटिविटी कंडीशन है यहाँ पर. लेकिन आप अगर यहाँ पर देख रहे हो तो x1 का पावर 2 है विच इज़ नॉट लीनियर. x1 एंड x2 प्रोडक्ट में है जो कि लीनियर नहीं है, क्योंकि x1 का पावर है 1, x2 का पावर है 1. तो दोनों मिला के इंडाइसेस की अगर एडिशन की तो हमें 2 मिल जाएगी. पावर इज़ नॉट इक्वल टू 1. x2 का पावर है 2. सो इस सेंस में आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये नॉन लीनियर है, जबकि आपका ये जो कंस्टेंट है वो लीनियर है. व्हाट दैट मीन्स, अगर मेरे यहाँ पर हर
ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट्स एंड हमारी नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस मीन्स डिसीजन वेरिएबल्स सबके सब लीनियर है तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। अगर इसमें से कुछ भी लीनियर नहीं है तो वो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आ जाएगा। सो मुझे यहाँ पर क्या एज्यूम करना है, आइदर मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और एनी वन ऑफ द कंस्ट्रेंट और आपके डिसीजन वेरिएबल, इसमें से कोई भी एक या सब अगर नॉन लीनियर है तो आपका प्रॉब्लम जो है वो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बन जाता है। अब इसे सॉल्व करने के कई तरीके हैं। वी आर हैविंग वैरायटी ऑफ मेथड टू सॉल्व द NLPP। सो सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या यहाँ पर करनी है कि विदाउट कंस्ट्रेंट, विथ कंस्ट्रेंट एंड विदाउट कंस्ट्रेंट। विदाउट कंस्ट्रेंट, विदाउट कंस्ट्रेंट में भी हमारे पास 2 पैटर्न है, एक है क्वाड्रेटिक, दूसरा है ओके मैंने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेटिक एंड दूसरा है नॉन क्वाड्रेटिक। यहाँ पर भी हमारे पास विथ कंस्ट्रेंट्स क्वाड्रेटिक एंड नॉन क्वाड्रेटिक, एंड एक यहाँ पर और केस आ जाती है जो कि है जनरल केस। तो ये सारे मेथड्स हैं। आउट ऑफ दैट वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन दिस फर्स्ट टाइप विथ कंस्ट्रेंट क्वाड्रेटिक ऑब्जेक्टिव फंक्शन यू हैव गिवन विच कैन बी सोल्व विद द डिफरेंट यूजिंग डिफरेंट स्टेजेस, और हर एक स्टेज के साथ हम इसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। मीन्स मेनी ऑफ द टाइम्स हमने जब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व किया है या फिर अभी NLPP भी हम करेंगे, हमने क्या किया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ, किया क्या है हमने, वी ऑप्टिमाइज्ड मीन्स वी आइदर मिनिमाइज्ड और वी आइदर मैक्सिमाइज्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सॉरी इट्स मैक्सिमाइज्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हमने किया है। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पर फॉलो करनी है। जब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आएगा नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, तो हमें उसके साथ आइदर मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ऑलराइट, सो स्टेप बाय स्टेप हम इसकी तरफ जाते हैं एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू मच ऑफ द डिटेल्स ऑफ द थ्योरी पार्ट। सो ये थ्योरी पार्ट डायनामिक प्रोग्राम की आप लिख सकते हो। दिस इज बेस्ड ऑन द डिसीजन मेकिंग, दैट डिसीजन मेकिंग pattern or bit is not included in our syllabus, which is required to understand that dynamic programming, and that's why I will not explain you much of the details. So dynamic problem and linear programming problem के difference जो है, dynamic problem technique allow us to break the given problem into sequences of smaller sub problems which are then solved in a sequential order. And linear programming problem का approach क्या है, it provides one time period solution to a problem, whereas DP approach is useful for decision making over time and solve each sub problem optimally. तो LP प्रॉब्लम एंटायरली वन सॉल्यूशन देता है पूरे प्रॉब्लम को, लेकिन DP क्या करता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या करता है, ये हमें हर ब्रेक किए वाले हर सब प्रॉब्लम को ऑप्टिमलिटी प्रोवाइड करता है। सो दैट डिफरेंस इज देयर and variety of different components are given over here which is not required in terms of problem solution, लेकिन ये डायग्राम आप याद रख सकते हो। सो अगर हमारे पास स्टेज n है तो हम इस स्टेज n को इनपुट क्या दे रहे हैं, आउटपुट क्या हमें मिल रहा है, एंड हाउ वी आर रिटर्निंग दैट टू फंक्शन। इन सिमिलर केस नेक्स्ट वाली स्टेज में n-1 में हमें इनपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है, उस पर बेस्ड आपका रिटर्न फंक्शन क्या होगा। ये ब्रेक डाउन करके हम हर एक स्टेज को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो n इज़ द स्टेज नंबर, Sn इज़ द स्टेट आउट इनपुट टू स्टेज n फ्रॉम स्टेज n+1। ये एक्चुअली जनरलाइज फॉर्म में दिया है तो ज़्यादा यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, बट एज विल गो फॉर द प्रॉब्लम्स यू विल गेट डाउन दैट। सो दिस इज़ फर्दर थ्योरी पार्ट जो प्रॉब्लम में नहीं पूछे जाएंगे, एंड यू कैन एक्सक्लूड दिस डिस्कशन। ये सिर्फ थियोरी एक बार पढ़ लो टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज गोइंग ऑन। एंड दिस network, this is actually a complex network diagram
विच विल नॉट बी आस्क्ड फॉर डायनामिक प्रोग्रामिंग टू ड्रॉ हियर. सो ये डायग्राम हम पूछेंगे नहीं, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो इस टाइप के होंगे. द अबोव डिस्कशन अबोव स्लाइड्स विल सपोर्ट दिस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायनामिक प्रॉब्लम. सो यहाँ पर हम मिनिमाइज, एक तो सबसे पहले हम मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. मिनिमाइज z इज इक्वल टू समेशन j इज इक्वल टू 1 to n एफ जे वाई जे. मीन्स वाई जे का कोई फंक्शन है जहाँ पर वाई जे की पावर्स 1 से ग्रेटर हो सकती है, लेस भी हो सकती है बट नॉट ऑल. सब्जेक्ट टू समेशन j इज इक्वल टू 1 to n ए जे बी वाई जे ग्रेटर देन और इक्वल टू बी. मीन्स आपके जो यहाँ पर कंस्टेंट्स है वो लीनियर कंस्टेंट्स कंसिडर किए हैं, राइट. ए जे एंड बी आर रियल नंबर वेयर ए जेज आर ऑल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वाई जेज आर 0. सो दिस इज योर नॉन निगेटिविटी कंडीशन. करेक्ट. एंड बी इज ग्रेटर दैन 3, ये हमें दे के रखा है. दिस इज एन n स्टेज प्रॉब्लम. Okay. Yj are called as the decision variables. Each decision variable is associated with a return function fj yj. So एक return function के साथ ये associated होगा. And the state variables are s1, s2, s3 and sn. So let us try to understand the facts. Introduction to state variable. So ये जो s1, s2 and so on ये सारे variables हैं. जैसे हमने स्लैक वेरिएबल्स लिए थे लीनियर प्रोग्रामिंग में, स्लैक वेरिएबल्स. सो इन स्लैक वेरिएबल्स की तरह ही ये सारे वेरिएबल्स हमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने हैं. सो S1 वी आर गोइंग टू असाइन विद द फर्स्ट गिवन कंडीशन विच इज़ आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी और लेस देन और इक्वल टू बी और इक्वल टू बी. देन इस पर बेस्ड हम Sn-1 डिफाइन करेंगे. सो दिस इज योर स्टेट वेरिएबल 2. उस पर बेस्ड हम Sn-2 डिफाइन करेंगे. दिस इज योर स्टेट वेरिएबल 3 एंड सो ऑन. उस पर बेस्ड हम सबसे लास्ट वाला स्टेट वेरिएबल हमारा S1 डिफाइन करेंगे. एंड वंस वी ऑब्टेन द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑल ऑफ दिस स्टेट वेरिएबल्स वी विल रीसब्स्टिट्यूट बैक इन टर्म्स ऑफ द रिकर्शन. सो इस रिलेशन को हम रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्सिव रिलेशन बोलते हैं. सो ये रिकर्सिव रिलेशन क्या करता है, ये हर एक स्टेट वेरिएबल के लिए हम डिफाइन करने वाले हैं. सो एफ जे एस जे, आप जो यहाँ पर देख रहे हो एस जे, ये हमारा है स्टेट वेरिएबल. तो हर एक स्टेट वेरिएबल के लिए ये हम डिफाइन करने वाले हैं. एंड हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन, इट इज़ द मिनिमम ऑफ एफ जे वाई जे प्लस एफ जे माइनस 1 इंटू एस जे माइनस 1. जे इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 to n. तो हमें इस फंक्शन का मिनिमम लेना है. अगर मैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपको दूँ एंड आई विल आस्क यू दैट व्हाट इज़ द मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन, व्हाट यू वुड हैव बीन डन हियर, इट्स dy बाय dx. ये फाइंड आउट किया होता आपने, इक्वल टू 0 किया होता इसके साथ. तो आपको यहाँ पर क्या मिलती, डिफरेंट एक्साइज की वैल्यूज़ मिलती. तो ये एक्साइज की वैल्यूज़ क्या है हमारी, दीज आर द स्टेशनरी वैल्यूज़. करेक्ट. जैसे ही आपको ये स्टेशनरी वैल्यूज़ मिलती है, आपने क्या किया होता, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया होता. एंड ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको हर एक xi पर आइडेंटिफाई करनी है. अगर किसी पर्टिकुलर xi पर ये डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है तो दिस फंक्शन विल हैव मिनिमम. अगर किसी पर्टिकुलर xi पर ये वैल्यू लेस दैन 0 है देन दिस फंक्शन हैव मैक्सिमम, राइट. एंड अगर ये इक्वल टू 0 है देन दिस फंक्शन नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट. फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड टू फाइंड आउट हियर. गॉट द पार्ट. सो ये पर्टिकुलर थ्योरी हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि ये आपको yj का मीन्स हमारे डिसीजन वेरिएबल्स का फंक्शन मिलने वाला है. दिस इज गोइंग टू बी फंक्शन ऑफ डिसीजन वेरिएबल. अब अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस फंक्शन को हम ये वाला थ्योरी पार्ट
अप्लाई करके इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे एंड ऐसा हम हर स्टेज पर करेंगे. सो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास है उतने नंबर ऑफ स्टेजेस हमारे प्रॉब्लम की वैरी होती जाएगी. एम आई राइट? सो वंस वी गेट दैट मिनिमम वैल्यू वी हैव टू जस्ट रीसब्स्टिट्यूट बैक. सॉल्विंग प्रॉब्लम इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. लेट अस ट्राई दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम मैं ओरली एक्सप्लेन करती हूँ और एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं. सो आई रिक्वायर फर्दर 10 minutes to complete this portion and we'll stop. Yes, number first problem. See now the pattern. This is the non-linear programming under uncertainty, additive separable return function and with a single additive constant. So आपका जो फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो एडिटिव रिटर्न फंक्शन के फॉर्म में है एंड जो कंडीशन है वो भी एडिटिव फॉर्म में है. करेक्ट? सो ये वाला पैटर्न हम यहाँ पर डील करने वाले हैं. सो क्वेश्चन इज यूज द डायनामिक प्रोग्रामिंग टू सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम. मिनिमाइज z इज इक्वल टू y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10, y1 y2 y3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये पूरा प्रॉब्लम हम लैग्रेंजेस अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर्स के साथ कर सकते हैं. एक्चुअली लैग्रेंजेस अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर जिन्होंने फर्स्ट ईयर ऑटोनॉमी का कंप्लीट किया है, कौन सा कोर्स था वो, मल्टीवेरिएट कैलकुलस, जहाँ पर आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा है. पार्शियल डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस हमने पढ़े थे इन टर्म्स ऑफ द एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन, इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग आउट द मैक्सिमा मिनिमा यूजिंग द लैग्रेंजेस अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर. तो ये प्रॉब्लम हम इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं. नाउ यू आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू यूज एनी पर्टिकुलर मेथड इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो, यू कैन यूज दिस मेथड एज वेल. मैं यहाँ पर जो मेथड बता रही हूँ वो भी सिंपल है बट इट इज़ अ स्टेज, डिफरेंट स्टेजेस हम यहाँ पर पुटअप कर रहे हैं एंड इन ईच स्टेजेस वी आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज आवर सोल्यूशन. ओके, सो let us check out that how the solution goes like. So we are going to introduce state variables s1, s2, s3. Now how many state variables we have to take? That is equal to the number of decision variables in the problem statement. Okay. So सबसे पहली चीज़ हम ये करें, सबसे लास्ट वाला जो स्टेट वेरिएबल है that we are assigning as the additive constant is equal to its value. So s3 क्या हो गया आपका y1 plus y2 plus y3 actually बट इट्स ऑलरेडी गिवन एज 10, सो s3 हो गया आपका 10. ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन. ठीक है. सेकंड कंडीशन, अब s2 फाइंड आउट करते हैं हम. सो ये अब इसे हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए. s3 है हमारा ये, तो s2 हम असाइन कर रहे हैं y1 प्लस y2 मीन्स s2 आपका हो गया s3 माइनस y3. y1 प्लस y2 की एडिशन हो गई हमारी s2. सो ये एक्चुअली कैलकुलेट होगा s3 माइनस y3 से. मीन्स अगर s3 आपके पास है इट्स 10 ना, s3 क्या है 10 है. अगर y3 आपको मिल गया तो हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आई विल गेट s2. एंड अगर s2 हमें मिल गया तो वो हम यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, आई विल गेट s1. अब s1 कहाँ से आएगा? अगेन फॉरगेट अबाउट दिस वन. s1 हमें मिलेगा y1 इज इक्वल टू s2 माइनस y2, s2 माइनस y2. तो हम ये थर्ड रिलेशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. नाउ ट्राई टू रिमेंबर दिस सिंप्लीफिकेशन. आई जस्ट इरेज द पार्ट. ये है हमारा फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन. s3 हम कर रहे हैं इस पूरे एडिटिव कंस्टेंट के लिए. देन s2 हम यूज़ कर रहे हैं y1 प्लस y2 के लिए. करेक्ट. बट ये है फर्स्ट एक्सप्रेशन के साथ s3 माइनस y3. तो हमारे पास s2 के लिए दो एक्सप्रेशंस हैं. सिमिलरली यहाँ पर s1 हम पुट कर रहे हैं y1 के लिए, तो s1 क्या हो जाएगा हमारा s2 माइनस y2. ऑलराइट. सो ये है हमारे 3 स्टेट वेरिएबल. अब इसके करस्पॉन्डिंग रिकर्सिव फंक्शंस आपको कैसे लिखने हैं. रिकर्सिव इक्वेशंस कैन बी रिटन एज f3. सबसे पहले लास्ट वाला इक्वेशन f3 s3. सो ये रिकर्सिव रिलेशन होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन.
और ये फंक्शन कहाँ से आएगा, y3 स्क्वायर प्लस f2s2. सो रिकर्सिव फंक्शन फॉर s2 एंड y3 का स्क्वायर. अब यहाँ पर पहले फंक्शन आपको दिया है y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर, तो ये हम रख रहे हैं एंड इसे हम हटा के f2 ऑफ s2 ऐसे कर रहे हैं. am I right? नाउ व्हाट इज दिस f2 ऑफ s2, वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं. ये भी एक रिकर्सिव रिलेशन है. दिस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन y2 का स्क्वायर प्लस f1 हम कहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ से. दिस इज ऑल्सो रिकर्सिव रिलेशन मिनिमम ऑफ y1 स्क्वायर. तो अब यहाँ पर जो ब्रैकेट में चीज़ें आपको दिखाई दे रही है ना, जस्ट मार्क दैट विद ब्लू लाइन, ये आपके फंक्शंस हैं एंड इन फंक्शंस की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मीन्स हमें इन तीनों फंक्शंस को जो हमने ब्लू के साथ मार्क किया है उसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्टिव वेरिएबल. कौन सा वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल. डिसीजन वेरिएबल के रिस्पेक्टिव हमें डिफ्रेंशिएट करना है एंड हमें इक्वेट करना है टू जीरो, इक्वल टू जीरो. And whatever value of that decision variables we are going to get, we have to first substitute here, right? Then we have to resubstitute in earlier. या फिर शायद ऐसे भी हो सकता है कि मुझे यहाँ पर पहले वैल्यू मिलेगी y3 की, उसके बाद y2 की, उसके बाद y1 की. So anything will happen here. So what you have to remember throughout this problem is this part. आपको ये पार्ट याद रखना है, इक्वेशन 1, 2 and 3. And similarly this substitution of state variables, ये आपको याद रखना है. Once you noted that properly, later on is the simple calculation. So सबसे पहले हम using relation 3 in relation 2, अब हम यहाँ पर मिनिमम ऑफ y1 स्क्वायर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. y1 स्क्वायर क्या है हमारा, s2 माइनस y2 विच वी आर सब्सटीट्यूटिंग हियर, क्योंकि यहाँ पर सिंगल टर्म है एंड यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है f1 s1 की तरह जो यहाँ पर यूज़ हुआ है, या f2 s2 की तरह जो यहाँ पर यूज़ हुआ है. सो विद दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर द फर्दर सिंप्लीफिकेशन. सो इट्स y1 स्क्वायर इज इक्वल टू s2 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर. तो यहाँ पर y1 स्क्वायर था तो उसका स्ट्रेट वे मिनिमाइजेशन हम इस फंक्शन के मिनिमाइजेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं. गिव अ मिनट, कौन है, प्लीज गिव मी. यस. सो ये एक्सप्रेशन हम यहाँ पर पुटअप कर देते, कहाँ पर, इक्वेशन 2 में, मीन्स f2 ऑफ s2 में. सो इट्स मिनिमम ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. लेकिन ये एक्सप्रेशन है y2 एंड s2 के बीच में. सो हम इस एक्सप्रेशन को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y2. सो अगर मैंने पार्शियल डिफ्रेंशिएशन लिया विथ रिस्पेक्ट टू y2, किसका, f2 का, तो ये हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स y2 प्लस s2 का डेरिवेटिव 0, राइट, माइनस y2 का स्क्वायर है, ये हो गया 2y2. am I right? इनफैक्ट ये डेरिवेटिव गलत हो गया, राइट. सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, दिस इज नॉट s2 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, राइट. ये है s2 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर. सो डेरिवेटिव हो गया ट्वाइस ऑफ s2 माइनस y2, राइट, इनटू माइनस y2 का डेरिवेटिव, इट्स -1. नाउ s2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा एंड माइनस y2 का डेरिवेटिव -1. सो ये हो गया आपका डेरिवेटिव ऑफ f2 विथ रिस्पेक्ट टू y2. अब इसे हम 0 से इक्वेट करते हैं क्योंकि हमें मिनिमम निकालना है, राइट. एंड नाउ विल सिंप्लीफाई दैट फर्दर. दिस इज 2, यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 2y2 माइनस 2s2 माइनस माइनस प्लस 2y2. तो ये हो जाएगा 4y2 माइनस 2s2 इज इक्वल टू 0, मीन्स 4y2 प्लस 2s2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ s2 एंड हेंस y2 appears to be s2 divided by 2.
तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या मिला है, y2 मिला है इन टर्म्स ऑफ S2 स्टेट वेरिएबल, y2 है हमारा डिसीजन वेरिएबल, करेक्ट। दस f2 ऑफ S2 नाउ आई कैन पुट डाउन एज S2 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस S2 माइनस S2 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई करो, ये मिलेगा S2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से हमने मिनिमम हटा दिया है, क्यों हटा दिया है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस वी हैव डन, क्योंकि ये प्रोसेस हमने मिनिमम आइडेंटिफाई करने के लिए ही करी है। ओके, सो ये हो गया आपका F2 S2। अब हम इक्वेशन 1 पर जा सकते हैं, जहाँ पर F3 S3 आपको डिफाइन करना है, मिनिमम ऑफ y3 स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर अपॉन 2। ये S2 का स्क्वायर अपॉन 2 क्या है, दिस इज योर F2 ऑफ S2, जो फंक्शन मुझे यहाँ पर पुटअप करना था। अब ये भी तो y3 का फंक्शन है जिसकी मिनिमम वैल्यू मुझे यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है, राइट। सो ये मिनिमम वैल्यू है F3 S3 ऑफ दिस एंटायर एक्सप्रेशन, बिकॉज S2 हमारे पास स्ट्रेट वे नहीं है, S2 हमने डिफाइन किया है इनिशियली, दैट S2 इज़ नथिंग बट S3 माइनस y3। सो ये एक्सप्रेशन S2 का हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, एंड नाउ इसका हमें मिनिमम निकालना है। सो अगेन इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y3 एंड इक्वेट दैट टू 0। सो डेरिवेटिव ऑफ F3 with respect to y3 we are taking up. So this is twice of y3 plus half as it is into 2 times s3 minus y3 into s3 का डेरिवेटिव 0 minus y3 का डेरिवेटिव 1. So 2 will get cancelled. What I will get is 2y3, correct. यहाँ पर प्लस s3 सॉरी माइनस s3 होगा, ये माइनस साइन हम जोड़ देते हैं, माइनस माइनस प्लस y3, एंड इसे इक्वेट करना है 0 के साथ। सो दैट इम्प्लाइज दिस इज 3y3 इज इक्वल टू s3। तो y3 क्या मिला है आपको, इट्स s3 डिवाइडेड बाय, am I right? So now let us further simplify this. F3 of S3 now I will get as S3 upon 3 bracket square plus half into S3 minus S3 divided by 3 bracket square. इसे पूरा सिंप्लीफाई करके देखो, हमें मिलेगा S3 का स्क्वायर अपॉन 3, राइट। यूजिंग द वैल्यू ऑफ S3 वी गेट, S3 की वैल्यू क्या है, इट्स y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10। मीन्स S3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 10। अब इस S3 की वैल्यू डिफाइन करके यूज़ करके हम F3 ऑफ S3 निकाल सकते हैं। सो दिस इज 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 3। सो F3 ऑफ S3 की वैल्यू हमें मिल गई, दिस इज 100 डिवाइडेड बाय 3, करेक्ट। लेकिन y3 क्या है आपका, दिस इज 10 S3 माइनस y3 क्या हमें मिला, ओके y3 भी कैलकुलेटेड, दिस इज S3 डिवाइडेड बाय 3। सो S3 आपके पास है 10 डिवाइडेड बाय 3, तो y3 हमें इस टाइप में मिल गया, दिस इज 10 डिवाइडेड बाय 3। वंस यू गेट y3 यू कैन सब्सटीट्यूट दैट इन फॉर्मूला ऑफ S2। तो यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट करो, y3 इज 10 बाई 3, तो हमें यहाँ पर मिलेगा S3 एज 10, y3 एज 10 बाई 3, तो ये मिलेगा 20 डिवाइडेड बाई 3। तो S2 की वैल्यू मिल गई 20 डिवाइडेड बाई 3। जैसे ही S2 मिल जाता है y2 हमें मिल जाएगा 10 बाई 3, S2 इट्स 20 बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 10s are 20, तो यहाँ पर 10 बाई 3 ही बचेगा, करेक्ट। अब आपके पास y3 आ गया, आपके पास y2 आ गया, एंड फर्दर यू आर हैविंग y1 हियर। y1 क्या है, S1 है, लेकिन S1 क्या है, S2 माइनस y2 है। तो S2 है आपका 10 डिवाइडेड बाई 3 एंड y2 है आपका 10 डिवाइडेड बाई 3। 20 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3, सो इट विल रिमेन 10 डिवाइडेड बाई 3। सो y1 भी आपका 10 डिवाइडेड बाई 3 मिला है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 100 डिवाइडेड बाई 3। ये S3 जो था ये किसका मिनिमम है, दिस इज मिनिमम ऑफ y3 का स्क्वायर प्लस F2S2। F2S2 क्या था, इट्स मिनिमम ऑफ y1 का स्क्वायर प्लस F1S1, आई एम सॉरी S2, एंड F1 क्या था, मिनिमम ऑफ y1 का स्क्वायर।
मीन्स जैसे ही आप F3, दिस इज़ F2, दिस इज़ F1 ये फंक्शंस डिफाइन करते हो ना, हर एक स्टेज में आप मिनिमाइजेशन की प्रोसेस कैरी कर रहे हो एंड यू आर कैलकुलेटिंग द ऑप्टिमम वैल्यू फॉर y1, y2 एंड y3 सिक्वेंशियली यूजिंग द स्टेजेस. स्टेजेस मीन्स नंबर ऑफ कैलकुलेशंस. तो इसके साथ आपको जो F3 मिलता है ना, ये है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसकी वैल्यू आप निकाल रहे थे. वो वैल्यू यहाँ पर मिली है 100 डिवाइडेड बाई 3 एंड साइमल्टेनियसली आपके जो डिसीजन वेरिएबल्स है y1, y2, y3 इनकी वैल्यू मिली है आपको 10/3. सो इन दैट सेंस हमें नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है. सो दिस इज द सिंगल मेथड वी आर इम्प्लीमेंटिंग हियर, जहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्वाड्रेटिक है बट कंस्टेंट लीनियर है. ओनली दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू इंक्लूड. सो ये दो प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हो, राइट. एंड लेटर ऑन यहाँ पर एक और टाइप हमने एक्सप्लेन किया है जो एग्जैक्टली LPP है, लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अप्रोच के साथ सॉल्व किया गया है. सो वी आर नॉट इंक्लूडिंग दैट हियर, नॉट इंक्लूडेड इन अवर सिलेबस. ऑलराइट, ओके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये पूरा जो फंक्शन है ये लीनियर प्रोग्रामिंग का फंक्शन है. ये हम सिंप्लेक्स मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं. सो वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड दैट पार्ट इन अवर सिलेबस. सो आई जस्ट कट आउट इट. सो यहाँ से आगे ये लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम है. सो जो पार्ट है इस पूरे PPT का वो सिर्फ ये है, ये दो प्रॉब्लम एंड ये वाला सॉल्व प्रॉब्लम. सो दैट अनसॉल्व प्रॉब्लम यू जस्ट ट्राई आउट. Their solution I'll give you in short while. Okay, so this is all about the non-linear programming. So with that we are concluding our syllabus. Only now MATLAB is remaining, and MATLAB we are using to solve the transportation problem, transportation and probably the assignment problem. So these two parts we are going to conduct in online mode once again. So probably today evening I'll announce one lecture from either 8 to 9. So 8 to 9 हमारा ये MATLAB का सेशन होगा आज, जहाँ पर मैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए MATLAB की प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन करूँगी. ऑलराइट, all of you please be present for that particular lecture and try to understand that MATLAB programming, क्योंकि उस पर एक हमें असाइनमेंट सॉल्व करनी है. दिस इज़ द लास्ट असाइनमेंट we are going to launch for our mathematical optimization syllabus, and with that we are concluding. So tomorrow one lecture, today one lecture 8 to 9 and tomorrow one more lecture from 9 to 10. With that we are concluding our syllabus of mathematical optimization, and tomorrow I'll explain you the entire ETE question paper pattern. ठीक है? Okay, I guess you might be having lecture today, lecture or practical. So I'll stop over here. We'll meet at 8 o'clock in the evening. All of you please put down your roll number in chat window and you can leave the meeting. Thank you everyone for joining, and I'll upload this session as early as possible.